Hello students, we'll be continuing with mensuration, that is volume and surface of cylinders and cone and cylinder. We have already done this topic from Frank textbook. Now I'll do the same topic from concise, that is exercise 20A. Exercise 20A from concise. Just for the sake of revision, cylinders, this first exercise is based on cylinders. So the formula for cylinder has a shape something like this. There are two circles in the top and bottom. Okay, this is the height of the cylinder and center radius of the cylinder. The volume of the cylinder formula is pi r square h. The total surface area of the cylinder. Total surface area means this curved surface along with the top and bottom. The total surface area of the cylinder is 2 pi r h plus r. And only the curved surface. If we want only the curved surface area of the cylinder, then it is curved surface area is 2 pi r h. Okay. So without wasting any time, let's start with the questions. The question number 1. Question number 1 is a very basic question. Height of the cylinder is 20 centimeters and the radius of its base is 7 centimeter. Height and radius. We have to find the volume and we have to find the total surface area. Okay, so height or radius diya hai. Use the formula of volume to find the volume. Use the formula of total surface area. Find total surface area. Take pi as 22 upon 7 unless specified otherwise. If they say 3.14, then only take 3.14. Otherwise, you will always take 22 upon 7. Okay. Pause the video and complete this sum. Question 2. The inner radius of the pipe is 2.1 centimeter. So the radius of the pipe is 2.1 centimeter. How much water can a 12 meter of this pipe hold? 12 meter of this pipe means the length, the height of the pipe is 12 meters. Okay, they are saying inner radius. Okay, well, just to confuse you, they have given you inner radius. Because agar inner or outer dono radius chahiye hota, तो they will give you both the information. But here we have only one radius given. So वो inner को avoid करो, ठीक है? And you remember what was the formula for hollow cylinder? Volume of the hollow cylinder. It was volume of hollow cylinder was pi r square की जगह पे I told you in the bracket it will be capital R square minus small r square h. मतलब जो रेडियस होता है hollow cylinder में दो रेडियस होते हैं, outer radius, inner radius, और you can say external radius, internal radius. ओके तो बड़े रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे रेडियस का स्क्वायर h. खाली r स्क्वायर के बदले दो r स्क्वायर आ जाते हैं एंड सबट्रैक्ट देम. Here I have this. How much water it can hold means we have to find the volume. So volume is pi r square h 22 upon 7 into 2.1 into 2.1 into 12. Height is 12. Do the calculation. The third sum, just write it to be done later in the end of this exercise. Okay, थोड़ा सा confusing sum है, थोड़ा बाद में करते हैं. First let's do the basic sums, important ones.
solve this. The fourth question. How many cubic meters of earth must be dug out to make a well 28 meters deep and 2.8 meters in diameter? So 28 meters deep. 28 meters deep and 2.8 meters in diameter. So radius will be 1.4 meters. पहले ही रेडियस लिखने की हैबिट रखो. अगर डायमीटर यूज़ कर लिया सम में तो सम गलत हो जाएगा. We always want रेडियस. How many cubic meters of earth must be dug out? Earth का मतलब मिट्टी, soil. ओके. सो अगर ये लैंड है और इसमें एक वेल बनाना है. ओके. सो वेल को ऐसे खोदना पड़ेगा नीचे ज़मीन के. ठीक है. तो जो भी मिट्टी यहाँ पे थी, दैट अर्थ विल बी डग आउट, इट विल बी रिमूव्ड आउट. सो हाउ मच अर्थ इज रिमूव्ड आउट दे आर आस्किंग यू. दैट मीन्स बेसिकली दे आर आस्किंग यू दैट व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेल, बिकॉज जितना बड़ा वेल है उतना ही अर्थ यहाँ से बाहर निकाला है. करेक्ट. So basically we have to find the volume of this well. Okay. I know the radius, I know the height. Achha, before that I just one small thing here. In this sum, this 2.1 was given in centimeters. Okay. And this height was given in meters. So you have to make these units same. Make sure you do that. Either you can make both as meters or you can make both as centimeters. Okay. It is better to keep it in centimeters. Okay. ये जो 12 meters है ना, इसको लिख देना 1200 centimeters और सब में यूज़ करना. Okay. Here the units are same, so not a problem. So the amount of the earth dug out is nothing but the volume, that is equal to pi r square h. Okay. Pi is 22/7, r square is 1.4 into 1.4 into h is 28. Okay. Multiply this, make this 14/10, 14/10, and they do the calculations. You can even cancel this. 7 1s are 7 4s are, and multiply all these. You will get the answer as 172.48. 172.48 meter cube. अब पूछा है, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एरिया. सो ये जो वेल है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ योर वेल, ठीक है, ये समझो बेस है उसका. सो इसके जो इनर सरफेस एरिया है उसे प्लास्टर करना है. ठीक है. इनर सरफेस एरिया मीन्स द वॉल्स ऑफ द वेल. ओके. जो वेल है उसके वॉल्स को, इनर सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है. ठीक है, मतलब ये वाले पार्ट को. ये जो दिख रहा है वॉल्स ऑफ द वेल, इसको प्लास्टर करना है. दैट मीन्स ये अगर वॉल्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दे मीन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल. वही प्लास्टर होगा. ऊपर से तो ओपन है और बेस को प्लास्टर नहीं करते कभी. सो इनर सरफेस एरिया मीन्स द वॉल्स ऑफ द वेल. सो इनर वॉल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया.
And what is the curved surface area? 2 pi RH. So 2 into 22 upon 7 into radius 1.4 into height 28. When you will multiply this, you will get the answer as 246.45 meter square. This is the inner surface area. And we have to find the cost in rupees. तो cost क्या है? 4.5 rupees per square meter. एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 4.5 रुपीज़. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट? टोटल कॉस्ट विल बी 246.45 into 4.5. So this answer you will get as 1108.8 rupees. Next, question number 5. Now, question number 5 is a hollow cylinder sum. There are very few sums of hollow cylinder, and hardly any sum comes from this topic of hollow cylinder or hollow cone in the exam. But still, it is, we can say, the part of the syllabus because it is part of cylinders. So we must know it. I had told you that the formula for volume of hollow cylinder is pi r square h के बदले r square के जगह पे capital R square minus small r square, external radius, internal radius. Okay, so in the 5th question, what length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 centimeter. सो एक सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं. एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है. ठीक है, सॉलिड सिलेंडर को रिकास्ट किया है इनटू अ हॉलो सिलेंडर. रिकास्ट मीन्स लाइक क्ले. अगर सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है उसको बंद करके वापस एक हॉलो सिलेंडर बनाया. ठीक है, रिकास्ट मीन्स मेल्ट एंड मेक अगेन. ओके, सो दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर बिकॉज इसी को रिकास्ट करके ये बनाया है. ठीक है, so volume of solid cylinder will be equal to volume of hollow cylinder. Okay, find the length of solid cylinder. मतलब इसका लेंथ मतलब हाइट मुझे फाइंड करनी है. ठीक है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मतलब इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर. ओके, रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20. एक्सटर्नल डायमीटर 20 है इसका, तो इसका एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा? 10 सेंटीमीटर. डायमीटर का हाफ रेडियस होता है. ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस, और यू कैन से कैपिटल आर. एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 0.25 सेंटीमीटर थिक. सो थिकनेस दिया है 0.25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. मतलब इसके जो हाइट है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, नाउ आई नो द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ दिस, बट ये थिकनेस वाला जो सीन है ना, ये एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं. सी, अगर ये एक सर्कल है, हॉलो सिलेंडर का टॉप है ये. ठीक है, ये उसका एक्सटर्नल रेडियस हुआ बाहर तक का और ये उसका इंटरनल रेडियस हुआ. ओके, या अगर मैं दोनों एक ही लाइन में बनाऊँ तो दिस इज़ द एक्सटर्नल रेडियस एंड दिस विल बी द इंटरनल रेडियस. करेक्ट. तो जो इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है ना, ये वाला, दिस डिफरेंस हियर,
दिस इज़ द थिकनेस. ओके, तो अगर मुझे इंटरनल रेडियस दिया है उसमें अगर मैं थिकनेस ऐड कर दूँ तो एक्सटर्नल रेडियस मिल जाएगा. ओके, और अगर एक्सटर्नल रेडियस दिया है उसमें से थिकनेस को माइनस कर दूँ तो मुझे इंटरनल रेडियस मिल जाएगा. तो एक्सटर्नल रेडियस माइनस द थिकनेस, तो मुझे मिलेगा इंटरनल रेडियस. करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? ये जो छोटा r है और ये कैपिटल R है. सो दिस कैपिटल R इज़ नथिंग बट स्मॉल r प्लस थिकनेस. ओके, सो अगर मुझे ये स्मॉल r चाहिए तो इट विल बी दिस कैपिटल R माइनस थिकनेस. ओके, सो यहाँ पे द इंटरनल रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर माइनस 0.25. दैट विल बी 9.75 सेंटीमीटर. Now again I'll write all the given information so to make you understand properly. Okay, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है एंड एक हॉलो सिलेंडर है. करेक्ट? सॉलिड सिलेंडर का आई डोंट हैव द हाइट बट आई नो द रेडियस 1 सेंटीमीटर, एंड हॉलो सिलेंडर के लिए आई नो द एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर. आई नो नाउ द इंटरनल रेडियस इज़ 9.75 सेंटीमीटर. समझ में आया ना कैसे आया? ये एक्सटर्नल में से थिकनेस को माइनस किया तो इंटरनल मिला. ओके, बट फर्स्ट स्टेप वाज इन द क्वेश्चन दे हैड गिवन डायमीटर्स. एक्सटर्नल डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो मैंने पहले ही लिख दिया एक्सटर्नल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड हाइट इज़ गिवन एज 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब वो हाइट ही होता है सिलेंडर का. ठीक है, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, and hollow cylinder की volume means pi r square minus r square h. Okay, pi will get cancelled. Here we will have 1 square into h equals 10 square minus 9.75 square into 15. Okay, so this is 100 minus, you will have to take square of 9.5. 9.75, I'm sorry. That will be 97.0625 into 15. This subtraction will give you 4.9375 into 15. यू कैन इवन टेक 2 डेसिमल प्लेसेस. 4 पूरा नहीं लोगे, 3 या 2 लोगे तो भी इनफ है. इसको मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी योर फाइनल आंसर बिकॉज 1 इंटू एच विल बी एच. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर. कंप्लीट दिस. Done? Okay. Let's come to the next question. Question number 6. There are a few questions in this exercise which we do not need to do. Okay. Like you can even mark in your textbook. ये क्वेश्चंस मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग है और कुछ ज़्यादा ही यू कैन से कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस है जो जनरली एग्ज़ाम में नहीं आते. ठीक है, एवरी ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर कैंसल्ड फ्रॉम द स्कूल और आई मेक द स्टूडेंट्स कैंसल इट बिकॉज वो नहीं आते. किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करना है तो दे कैन डू इट, अदरवाइज दिस सम्स विल नॉट कम.
So question number 7, 12, 19, 20, 25, 26, 'Okay, that's it. एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो और भी कैंसिल हो सकते हैं, बट विल डू देम. ओके, सो कैंसिल दीज सम्स, ये ज़रूरत नहीं है. Let's do the sixth one. A cylinder has diameter 20 centimeter. Diameter is 20, that means radius is 10 centimeter. The area, curved surface area is 100 centimeter square. So curved surface area is 100 centimeter square. Find the height of the cylinder correct up to 1 decimal place. So अगर मुझे curved surface area दिया है तो I'll use the formula of curved surface area, 2 pi RH. So 100 equals 2 into 22 upon 7 into radius 10 into height h. Now they know that the answer will come in decimal point. That is why they have told you in the question itself to find the answer in 1 decimal place. ठीक है, so ये 0 0 cancel हो जाएगा. 10 into 7 upon 2 into 22, 70 upon 44. When you divide this, you will get the answer as 1.59 something. So that means it's nothing but 1.6. Okay, then we have to find the volume of cylinder. So volume is pi r square h, correct? Just find the volume on your own. मैंने ये लिख के दे दिया है आपको. Do this multiplication and find the answer. Okay, solve this. Pause the video and complete this calculation and then come to question number 8. Now what does question number 8 says? A cylindrical container with diameter of the base 42 centimeters. So एक cylindrical container है, ठीक है, and diameter of the base is 42 centimeters. Means radius कितना हुआ? 21 centimeter. Contains sufficient water to submerge a rectangular solid iron with dimensions 22, 14 and 10.5. So एक cuboid है ऐसे rectangular. See, always you should know two formulas कि cuboid का formula क्या होता है? Cuboid is length into breadth into height. Okay, and cube is a cube, side cube. Volume of the cube is side cube. So अब ये cuboid है, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है, इसको पानी के अंदर डाला, ठीक है. So there is some water up to some height. हमें नहीं पता कितनी हाइट है और हमें ज़रूरत भी नहीं है कितनी हाइट का पानी है ऑलरेडी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना पानी है अंदर. What matters is ये डालने के बाद कितना पानी का लेवल बढ़ेगा. ओके, सो इसको अंदर डालना है. इसके डायमेंशंस क्या है? 22, 14 एंड 10.5. ओके, तो इसको डालने के बाद कितना पानी का लेवल बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? जितना इसकी वॉल्यूम होगी, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना ही ये अंदर जाके जगह लेगा और उतना पानी का लेवल बढ़ेगा. ओके, सो द राइज इन वाटर लेवल विल बी नथिंग बट
equal to the volume of this cuboid, this rectangular solid and cuboid are same. So जितनी इसकी वॉल्यूम है उतना ही पानी का लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियसली कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा या कम नहीं होगा, ये जाके अंदर जितनी जगह लेगा उतना लेवल बढ़ेगा. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज will be equal to volume of rectangular solid. Correct. Volume of water rise means pi r square h will be equal to length into breadth into height. So this is 22/7 into radius is 21 centimeter into height we don't know. Height means कितना पानी का लेवल बढ़ेगा. ठीक है, इनिशियल कितना लेवल है उससे कोई मैटर नहीं करता. समझो बढ़ने के बाद यहाँ तक आ गया पानी का लेवल, तो हमें सिर्फ ये वॉल्यूम से फ़र्क पड़ता है. नीचे कितना पानी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज 22 into 14 into 10.5. ओके, नाउ 7 1s are 7 3s are 22 will get cancelled. So height will be into 105/10 लिख दो इसको, and this 3 and 21 will come in the denominator here. 3 into 21. Okay, so 7 2s are 7 3s are 3 3s are 3 5s are 5 7s are 5 2s are 2 will get cancelled here. Seven upon 3. Answer will be 2 1/3. These type of sums we had done in Frank textbook also. Similar sum. Question number 9. Now this question, we have already done this type of question. A cylindrical container with internal radius of the base 10 centimeter contains water up to a height of 7 centimeter. Find the area of the wet surface. ठीक है, सिर्फ इंटरनल रेडियस लिखा था लेकिन थिकनेस या एक्सटर्नल रेडियस नहीं दिया है, तो मतलब ये इंटरनल रेडियस इज नॉर्मल रेडियस. ओके, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना. नाउ अब ये दिया है रेडियस और हाइट और बोला है फाइंड द वेट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो मैंने ये वेट सरफेस एरिया वाला सम पहले भी बताया था, वेयर दिस कर्व्ड पार्ट, ये जो सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट होता है, ठीक है, ये वेट होता है, एंड प्लस जो बेस होता है दैट इज़ ऑल्सो वेट. फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास, इफ़ यू टेक अ ग्लास, in that glass the walls of the glass will be wet and the base of the glass will be wet with water. The top part is open, so वो तो wet होगा नहीं. ओके, सो वेट सरफेस एरिया का मतलब क्या फाइंड करना है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है प्लस ये बेस का एरिया. ओके, ये कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर इस बेस के एरिया को ऐड कर देना है, दैट विल बी द वेट सरफेस एरिया. ओके, सो द वेट सरफेस एरिया equals curved surface area plus base area. कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, और बेस एरिया मतलब ये बेस, सिलेंडर का बेस मतलब एक सर्कल होता है. सी, दो सर्कल से ही एक सिलेंडर बनता है ऐसा. सिलेंडर का बेस मतलब एक सर्कल, और बेस एरिया मीन्स सर्कल का एरिया. सो व्हाट इज सर्कल एरिया? इट इज़ पाई आर स्क्वायर. You should know this by heart. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर. ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो सी एस ए मीन्स 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. ओके, यू कैन टेक पाई आर कॉमन, you will get 2h plus r. Now here substitute the values here. These values substitute it here. Take pi 22/7 and find the answer.
Next, question number 10. Find the total surface area for open pipe. So open pipe है, देखो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि अगर ये एक पाइप है ऐसा, ठीक है, ओपन पाइप, and length is given, that means height is given as 50 centimeter, external diameter is 20, that means external radius will be 10 centimeter, and internal diameter is 6 centimeter, that means internal radius will be 3 centimeter. मैं डायरेक्टली यही लिखता हूँ सो दैट मिस्टेक हुई नहीं, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. मुझे एक्सटर्नल इंटरनल मतलब समझ जाना है कि ये हॉलो है, ठीक है. जिसको ये सम डिफ़िकल्ट लगे अगर एक्सप्लेनेशन के बाद, तो यू कैन अवॉइड दिस सम ऑल्सो. ओके, मैं पहले ही बता देता हूँ बिकॉज ये हॉलो सिलेंडर के बेस्ड का सम है और थोड़ा लेंथी सम है, सो यू कैन अवॉइड दैट ऑल्सो. अब इसमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो. हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मीन्स हॉलो सिलेंडर में ये बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, बाहर का. देन अंदर का पार्ट, ये दिस इज़ हॉलो ना, तो इसके अंदर भी ये जो छोटा सिलेंडर दिख रहा है अंदर बना हुआ, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा. ओके, सी TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर में क्या क्या होता है. ओके, उसमें होगा CSA ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस CSA ऑफ इनर सिलेंडर प्लस, मतलब ये जो बाहर का सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये अंदर का पार्ट है, ठीक है. हॉलो है ना, हॉलो मतलब अंदर से दिख रहा है मुझे, तो अगर मुझे कलर करना है इसको तो बाहर भी कलर करना पड़ेगा और सिलेंडर के अंदर भी कलर करना पड़ेगा, ठीक है. तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर ये वाला पार्ट और नीचे भी ये वाला पार्ट, रिंग वाला पार्ट होगा ऐसा, जिसको मुझे कलर करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, दिस रिंग का एरिया निकालते हैं. रिंग मतलब ऐसे दो सर्कल्स हैं और मुझे ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए. सो कैसे मिलेगा, पूरे सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल माइनस करना, मीन्स दिस पाई आर स्क्वायर, फुल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस दिस स्मॉल सर्कल दैट इज स्मॉल पाई आर स्क्वायर. ओके, तो उसको लिखते कैसा है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये एक रिंग के लिए, ओके, तो दो के लिए यहाँ पे 2 आ जाता है. ओके, तो ऐसे फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर. ओके, अगर समझ में आ रहा है तो ये याद रख लो. ओके, स्कूल में पूछ सकते हैं, प्रीलिम में, पेपर में वगैरह पूछ सकते हैं. सो दिस इज़ CSA ऑफ आउटर सिलेंडर, CSA ऑफ इनर सिलेंडर, और ये रिंग के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, और मैंने 2 क्यों दिया, बिकॉज ऊपर नीचे दोनों रिंग काउंट होगी, ठीक है. सो आउटर सिलेंडर मीन्स 2 पाई कैपिटल RH, इनर सिलेंडर मीन्स 2 पाई स्मॉल RH, CSA दोनों का, ठीक है. I hope you understood what I was trying to say. I don't have a cylindrical shape now, but अगर आप इसके समझो ये सिलेंडर होता, अगर ये सिलेंड्रिकल शेप होता अगर, तो ये बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता, एंड बिकॉज दिस इज़ हॉलो तो इसके अंदर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ता, ठीक है. और ये कुछ थिक होता, तो उस थिकनेस के वजह से उस थिकनेस के ऊपर भी कलर करना पड़ता है ऐसे. ओके, ये पूरा अगर ये सिलेंडर होता तो उस थिकनेस पे भी कलर करना पड़ता, मतलब यहाँ पे ऐसा. तो ये वाले पार्ट का भी एरिया ढूंढना था, तो वो हमने इससे ढूंढा था. यू कैन इवन राइट इट एज अ फॉर्मूला. रिंग का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. यू हैव डन दिस इन 9th स्टैंडर्ड. ओके, लेट्स नाउ यू कैन टेक 2 पाई कॉमन ईयर. दिख रहा है 2 पाई सब में कॉमन आ सकता है. तो ये कैपिटल R इज 10 इंटू 50 प्लस स्मॉल RH, दैट इज 3 इंटू 50 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 500 प्लस 150 प्लस 100 माइनस 9.
Do this calculation. You will get the answer as 4657.71 centimeters. Sorry, square, because this is area. Okay, you can pause the video and copy it. I'll do the last sum for today, that is question number 11. The height and radius of the base of a cylinder are in the ratio 3:1. So height or radius का ratio है 3:1. So basically we can take the common multiple as x. तो height होगा 3x, radius होगा x. Okay. Its volume is given as 1029 pi. Pi भी दिया है, ठीक है, तो इसको याद रखना, pi लिखना. Find the total surface area. So volume अगर दिया है तो volume is equals to pi r square h. Volume is 1029 pi. 1029 pi equals pi r square means r क्या था, x square into h 3x. pi r square h, pi r square h. अब ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा. ये फ़ायदा होता है अगर वॉल्यूम में डायरेक्टली पाई दिया है तो पाई पाई विल गेट कैंसिल. ठीक है, तो 1029 ये 3 डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब. सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा एक्स क्यूब क्या मिला 343. सो एक्स विल बी 7. ओके, एक्स 7 मिल गया. अगर एक्स 7 मिला तो हाइट क्या होगा 3 into 7 21 एंड रेडियस क्या होगा 7. इफ़ हाइट और रेडियस मिल गया तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज 2 pi r h plus r. जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, यू विल गेट द आंसर. कंप्लीट करो ये. Solve this. Find the value of total surface area. And that's it for today. Thank you.